Good morning, students. So today again we are here to continue chapter number 7, coordinate geometry. In my previous class we had discussed how to derive area of triangle formula, and today we will study how to apply it in questions. ठीक है ना? In our previous class अपन ने पढ़ा था कि area of triangle formula को कैसे derive किया है. Hopefully आपने उसको revise किया होगा. Now today I will tell you how to apply this formula. Suppose three coordinates are given A, B and C. These three coordinates are given. Now we have to find out area of triangle ABC. अपनों को area of triangle ABC find करना है. Now first work is to label them. Suppose I have taken coordinate A as x1, y1, coordinates of B as x2, y2 and coordinates of C as x3, y3. In my previous class I told you already that it is not mandatory to take first coordinate as x1 y1. You can take coordinate B as x1 y1 और C as x1 y1. कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है. As you wish. But I have labeled as x1 y1 A coordinate को लिए, x2 y2 B वाले coordinates को लिए, x3 y3 C coordinates को लिए. Now we'll keep these values in this particular formula. So area of triangle ABC, उस ट्राइंगल का नाम आ जाएगा जो आपको वर्टिसेस दिए. वहां पे ABC दिया तो अपन ने ट्राइंगल ABC बना लिया. वहां पे XYZ होता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ. Recall this formula: half of x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2. I told you to learn it. Please learn all the formulas which are related with this chapter. Okay? Now see, I told you yesterday कि x1, x2, x3 ब्रैकेट से बाहर आ रहे हैं. एक पैटर्न फॉलो हो रहा है. x1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3. y के कौन से कोऑर्डिनेट्स आएंगे? x1 के बाद कौन सा आ रहा है? y2. y2 माइनस y3 प्लस x2. x2 के बाद क्या आता है? 3. तो आ गया y3 माइनस y1. 4 क्यों नहीं आया? बिकॉज ट्राइंगल में तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्लास. और प्लस x3 आ गया तो उसके आगे क्या आएगा? y1 माइनस y2. Now we have to keep values of these coordinates which I have already labeled in this particular formula. Now solve it. Half of x1, replace x1 by 1, multiply by y2. y2 is 5 minus y3. y3 is minus 4. ध्यान से ये रखना है, आपको values properly put करनी है. This minus sign belongs to formula, but y3 की coordinates negative 4 है, so it will come in bracket. या तो ब्रैकेट में डालिए या फिर माइनस साइन ऑलरेडी यहाँ है और वो नेगेटिव जो नेगेटिव कोऑर्डिनेट आ रहा है वो आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस कर दो. एक ही बात है. पहले मैं आपको एक बार ऐसे समझा दूं. ठीक है? प्लस x2. x2 इज 3 इंटू y3. y3 इज माइनस 4 माइनस y1. y1 इज माइनस 2. अगेन नेगेटिव तो आपने फिर से ब्रैकेट लगाया माइनस 2 प्लस x3. x3 इज माइनस 1. ये पॉजिटिव साइन तो फॉर्मूले का आ गया, बट x3 वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इट विल कम इन ब्रैकेट -1 मल्टीप्लाई बाय y1. y1 इज -2 माइनस y2. y2 इज 5. एनी प्रॉब्लम इन कीपिंग वैल्यू? वैल्यू बिल्कुल ध्यान से रखना प्लीज. हाफ विल रिमेन एज इट इज. x1 अगर आपको यहाँ पे भी कंफ्यूज हो तो क्या लिख लो? x1 y1, x2 y2, x3 y3. नो इश्यूज. ये आपको देखना है आपको किस तरीके से इजी लग रहा है सॉल्व करना. ओके? सो x1 इज रिप्लेस्ड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय y2 माइनस y3. y2 इज 5 माइनस साइन फ्रॉम फॉर्मूला. y3 नेगेटिव 4 है तो ये आगे माइनस 4 ब्रैकेट में रखा. क्यों? बिकॉज टू नेगेटिव साइंस कांट कम टुगेदर. प्लस x2. x2 इज 3 मल्टीप्लाई बाय y3. y3 is -4. This minus will come as it is. y1 is -2. Again two negative signs can't come together, so I can bracket here. Plus x3. x3 is -1 तो प्लस साइन तो आ गया और -1 को आपने रख दिया ब्रैकेट में. y1 -2 माइनस फ्रॉम फॉर्मूला y2 is 5. ठीक है? अब जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक ये नेगेटिव है, वो वाला y3 नेगेटिव है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा. अभी फर्स्ट टाइम कर रहे मैं आपको प्रॉपर्ली बता रही हूँ. Now area of triangle ABC is equal to half of, solve it now, 1 multiply by 5 minus into minus plus 4 plus 3 multiply by -4 minus multiply by minus
plus 2 plus minus minus 1 into minus 2 in minus 5 minus 7 minus plus but sign negative. Solve it. Area of triangle ABC is equal to half of 5 plus 4 9. तो ये आ गया 1 multiply by 9 plus 3 multiply by minus 4 plus 2 minus 2 because plus minus sign of greater number 4 का था नेगेटिव था तो minus 2 आ गया. minus 1 multiply minus 7 plus 7 minus 1 multiply minus 7 plus 7. Two negative signs. When we multiply two negative signs, then answer is always positive. Now solve it. Area of triangle ABC is equal to half of 9 into 1 9. 3 multiplied by minus 2 minus 6 plus 7. So half of, solve it. 9 and 7 both are positive. तो 9 plus 7 कितना हो गया 16. 16 minus 6 16 minus 6 तो ये आ गया half of 16 minus 6 10. ये आ गया 5. तो 5 square units because unit of area is always square unit. जो भी unit है उसका square लगता है. यहाँ पे आप ये नहीं सेंटीमीटर लिख दें या मीटर लिख दें. Units are not given because coordinates are given here. So you have to write area of triangle ABC is equal to 5 square units. In this way we can find. मैंने यहाँ पे 9 plus 7 16 minus 6 क्या आपकी मर्जी है. 9 minus 6 3 plus 7 10. एक ही बात है. Whatever you feel easy you can follow that method. So in this way we can find out area of any of the triangle if three coordinates are given to us with the help of area of triangle formula. तो आपने फॉर्मूला प्लीज लर्न कर लिया होगा या नहीं किया होगा तो लर्न कर लीजिए इसको. ओके. So in previous example I told you how to apply this formula and how to find out area of triangle. But suppose if you feel it difficult, अगर आपको लग रहा है फॉर्मूला बहुत लेंदी है, डिफिकल्ट है, आप लर्न नहीं कर पाएंगे, आप कहीं ना कहीं गलती कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. We have one more option to find out area of triangle. But for that you have to learn a pattern. उसके लिए आपको एक पैटर्न लर्न करना पड़ेगा. आप फॉर्मूला लर्न नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे then also will get the same answer. देखिए क्या पैटर्न है. Three coordinates, obviously if our triangle is given then three coordinates will be given to you. We have written in this manner x1 x2 x3 again x1 because three coordinate है. In the same way y1 y2 y3 y1. Now what we will do, formula तो देखिए क्या करेंगे आप इसमें. half will come as it is, multiply x1 y2 plus x2 y3 plus x3 y1. ओके. वो मल्टीप्लाई किए आपने चारों डाले, तीनों के पीछे प्लस साइन आ गया, माइनस एंड देन कीप ब्रैकेट. अब ये मल्टीप्लाई कर दो. x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3. That's it. फॉर्मूला जिसको याद नहीं हो रहा, वैसे फॉर्मूला भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा तो आप ये पैटर्न याद कर लीजिए. पहले ये तीनों मल्टीप्लाई किए, देन नेगेटिव प्लस में साइन आ गया इनके बीच में, फिर नेगेटिव साइन लगाया, ब्रैकेट और फिर ये तीनों मल्टीप्लाई कर दिए. ठीक है. ये भी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो पैटर्न लर्न करना है. अब सपोज मैं उस सेम एग्जांपल आई एम टेकिंग, we will find area of triangle ABC, same coordinates I have taken but not by using formula but with the help of this pattern. Okay. Now we have to check whether answer is same or not. Answer will be obviously same only. Answer same आएगा अगर आप same सही करेंगे तो. Now let us check it. We will replace x1 by 1, x2 3, x3 minus 1, again x1 1, y1 minus 2, y2 5, y3 minus 4, again y1 minus 2. Okay. Now solve it. There is no need to write whatever I have written there. वो तो आपको मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा कि ऐसे मल्टीप्लाई होंगे. Now directly we will keep value. See, area of triangle ABC is equal to half of, solve it. 1 into 5 5 plus 3 into minus 4 3 into minus 4
-12, so it will come in bracket because positive sign already वहां दिया गया है, plus -1 multiply by -2. If we'll multiply two negative numbers, answer is always positive. तो -1 multiply -2, 2 आ गया. फिर क्या था? माइनस साइन लगाया and keep bracket. Now multiply from this side. -2 multiply by 3, -6 plus 5 multiply by -1, -5 plus -4 multiply by 1, -4. Bracket close. Any issues? वही पैटर्न वाइज अपने वैल्यू रख दी. 1 multiply by 5, 5 प्लस फॉर्मूले में मैंने प्लस बताया था पैटर्न में. 3 multiply by -4, -12 बिकॉज प्लस साइन यहाँ दिया हुआ था ऑलरेडी. वैसा आप हटा के इसको डायरेक्टली माइनस भी लिख सकते हैं बिकॉज एक ही बात है, प्लस माइनस माइनस ही आएगा. बट एक बार मैं पूरा करके दिखा रही हूँ आपको. प्लस -4 सॉरी ये था प्लस -1 इंटू -2 +2. फिर माइनस साइन ब्रैकेट लगाया, ये मल्टीप्लाई कर दिया. 3 multiply -2 -6, 5 multiply by -1 -5 प्लस साइन फॉर्मूले वाला आ गया प्लस -4 into 1 -4. Now we have to solve it. Half of, you can add them, 5 positive है 2 positive है. 5 plus 2 7 plus minus -12. आप ब्रैकेट ओपन करना चाहे ब्रैकेट ओपन कर लो या पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए. माइनस ब्रैकेट -6 प्लस माइनस -5 प्लस माइनस -4. सॉल्व इट. हाफ ऑफ, ये आप सॉल्व कर सकते हैं करना चाहें तो 7 -12 -5 माइनस अगेन ब्रैकेट. ऑल दीज 3 टर्म्स आर नेगेटिव इन ब्रैकेट, तो माइनस माइनस प्लस बट साइन माइनस. तो 6 and 5 11, 11 and 4 15, तो ये आ गया -15. So half of -5 after opening this bracket, minus into minus plus. तो half of 15 is positive, 5 is negative, तो आ गया multiply by 10 which gives you 5 square units. So area of triangle ABC is equal to 5 square units. Answer will be same. You can go through this formula as well as this pattern. दोनों ही बिल्कुल easy हैं and दोनों ही admissible भी हैं, किसी में भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. If you are applying formula, then you have to write down formula, then you have to keep value. Or if you are applying this pattern, तो आपको ये pattern बना के दिखाना होगा. Okay? So in this way you can find out area of triangle very easily. It may also be possible 10th class कि you will find area of any of the triangle and answer comes 0. ये भी पॉसिबल है कि आपने किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया और जब आपने एरिया फाइंड किया तो आंसर 0 आया. व्हाट डू यू मीन बाय दिस कंसेप्ट? क्या ऑब्जर्व करेंगे आप? एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट बी 0. वी नो दैट इफ 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स आर गिवन देन वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल. अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट देंगे तभी ट्राइंगल बनेगा और इस ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया जरूर होगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल कांट बी 0. एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 नहीं हो सकता. बट इन सम ऑफ दी केसेस, कोई एक एग्जांपल में भी आप देखेंगे, आप जब एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने फाइंड किया, जैसे भी मैंने प्रीवियस एग्जांपल आपको बताया, आपने एरिया फाइंड किया तो आपका आंसर आ रहा है 0 स्क्वायर यूनिट्स. फिर वो क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम योर आंसर? आपने अपने आंसर से क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व ये किया कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ रहा है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0, इट मींस ट्राइंगल इज नॉट फॉर्म्ड. ट्राइंगल बना ही नहीं. अब जब ट्राइंगल नहीं बना तो क्या बना? अगर 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है ABC, if 3 collinear points are given, collinear points are those points which lie on a same straight line. इस केस में ट्राइंगल नहीं बन रहा. इट मींस अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के बाद आंसर कम्स 0, इट मींस those 3 points are collinear points. वो तीनों पॉइंट्स collinear points हैं. याद है एक्सरसाइज 7.1 में एक क्वेश्चन था कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट. सो विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला वी डिड दैट क्वेश्चन. आपने फाइंड किया AB प्लस BC एंड AC. अगर इन दोनों का सम थर्ड साइड के लॉन्गर साइड के इक्वल है, दैट मींस पॉइंट्स आर कॉलिनियर. बट कॉलिनियरिटी चेक करने के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस्ट ऑप्शन है. आपको इजीली आंसर मिल जाता है इन प्लेस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला. यानी कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल कम्स 0, दैट मींस पॉइंट्स आर कॉलिनियर. क्वेश्चन में आया चेक कीजिए वेदर द पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट. We'll go with area of triangle formula. If area comes 0 square unit, then yes, these points are collinear as area of triangle is 0.
ओके, एक पॉइंट तो ये आपको थोड़ा अलग मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, इन सम ऑफ द केसेस जब आप एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करेंगे, तो यू विल गेट आंसर इन नेगेटिव, लाइक आपको आंसर मिल गया -14 स्क्वायर यूनिट्स। सो व्हाट यू विल डू, एट लास्ट आपको लिखना पड़ेगा एरिया कांट बी नेगेटिव, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिमूव दिस नेगेटिव साइन, जो कांस्टेंट वैल्यू है दैट विल रिमेन एज इट इज, सिर्फ आपको नेगेटिव साइन को रिमूव करना है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 14 स्क्वायर यूनिट बिकॉज़ एरिया इज अ मेजर। हमने किसी ट्रायंगल का एरिया निकाला, बोल रहे इसका एरिया -3 स्क्वायर यूनिट है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। बट यहां नेगेटिव क्यों आ रहा है? कैन यू टेल मी यहां नेगेटिव क्यों आ रहा है? यहां नेगेटिव इसलिए आ रहा है बिकॉज़ वी आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेट्स, और कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं, कोई कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव आ रहे हैं, कई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव आ रहे हैं। सो मे बी after finding area of triangle your answer is negative. So at last you will have to write that area can't be negative and just remove this negative sign, and answer is that positive value, whatever you got that is the answer. Okay, समझ में आई? एक तो collinearity वाला कंसेप्ट और area can't be negative. Now it may also be possible कि क्वेश्चन दिया हो कि ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, find its area, इसका एरिया फाइंड कीजिए। हमने तो पढ़ा है हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल, बट नाउ इफ ऑल द फोर वर्टिसेस आर गिवन देन हाउ कैन वी फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? वी हैव ऑप्शन दैट वी कैन जॉइन एनी वन डायगोनल। आप कोई सा भी एक डायगोनल अगर जोड़ते हो तो क्या ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? वी कैन कन्वर्ट दिस क्वाड्रिलेटरल इन टू ट्रायंगल्स। Suppose I have joined diagonal AC. I have joined this diagonal AC. Now after joining it, we got two triangles. First triangle is triangle ABC and second one is triangle ADC. Now can we find area of this triangle ABC with the help of the same concept? Similarly, we can find out area of triangle ADC also. दोनों एरियाज निकाल लिए, जस्ट ऐड देम, उनको ऐड कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा? पूरे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया आपको मिल जाएगा। गॉट इट? अब यहां जरूर ध्यान रखना, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी आपने फाइंड किया -12 स्क्वायर यूनिट्स और एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी आपको मिला 14 स्क्वायर यूनिट्स। सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी विल बी, आपको नेगेटिव साइन को रिमूव करना है, ये मत करना 14 - 12 2 आ गया, नो, area can't be negative. So area is 12 square unit plus 14 square unit, that means 26 square units. Got it? अब यहाँ एक कंसेप्ट हो रहा है, मान लीजिए I have joined diagonal AC but स्वप्निल has joined diagonal BD, तो क्या होगा इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर will be same. If I have joined diagonal AC and you have joined diagonal BD, तो इस केस में आप क्या करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी फाइंड कर लेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी फाइंड कर लेंगे। दो ट्रायंगल्स ज्वाइन, आप दोनों के एरिया फाइंड कर लेंगे। दोनों ट्रायंगल के एरिया आपने फाइंड किए, यहाँ पे मैंने फाइंड किए। ये एरियाज अलग अलग हो सकते हैं बिकॉज ऑब्वियसली ट्रायंगल ही अलग हो गए ना। इट इज ट्रायंगल एबीसी एंड एडीसी, यहाँ ट्रायंगल बन रहे हैं एडीबी एंड बीसीडी, तो इन टुकड़ों के, इन ट्रायंगल्स के एरिया डिफर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट व्हेन यू ऐड एरिया ऑफ बोथ द ट्रायंगल, जब आप दोनों ट्रायंगल के एरिया ऐड करेंगे तो जो कंबाइंड होल सोल आंसर आया है दैट विल बी सेम, दैट मींस आंसर विल बी सेम 26 स्क्वायर यूनिट इन ऑल। पूरा मिला के जो एरिया आएगा दैट शुड बी सेम। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि हमारा ये आ रहा है आपका कुछ और आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज डायगोनल अगर हम अलग अलग जोड़ देते हैं ट्रायंगल्स के एरिया अलग अलग आएंगे डेफिनेटली, बिकॉज अलग ट्रायंगल्स बन रहे हैं, बट जो ओवरऑल आंसर आएगा दैट विल बी सेम। ओके, सो दिस टॉपिक इज इंटरेस्टिंग, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। फ्यू ऑफ द पॉइंट्स आर लेफ्ट व्हिच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, so you have to recall it and try examples which are given before exercise 7.3 as well as some of the questions of exercise 7.3 also you can do. So stay safe, stay healthy.